Hello, my dear children. This is Firdaus Rahman, and here I am to cover your chapter 5 of English grammar, which is the noun, naming word. So, in this video, I am going to explain this chapter as I have already explained half of this chapter. Okay, so in this video, I am going to explain the rest half of this chapter. So, before starting the explanation, I would like to recall which I have already explained in first session. Okay, so in first class I have explained about what is noun. So what is noun? Tell me. Yes, what is noun? Words which are used as names of persons, animals, places or things are called noun. Okay, now let's see few examples. So the first one is the dog is barking. So dog is noun here. Now let's see second example, which is Kriti is a kind girl. So Kriti is noun here. The third one is ripe bananas have yellow skin. So banana is noun here. India is a great country. So India is noun here. Okay. And after this, I have already explained kinds of nouns. So the first one which I have explained is common noun. So what is common noun? Tell me. Yes. Common nouns are the names given in common to persons or things of the same class or kind. तो कॉमन नाउन हम किसे कहते हैं? कॉमनली हम किसी पर्सन या थिंग को कोई नेम दे देते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं. एज फॉर एग्जाम्पल बिजनेसमैन, बॉय, फार्मर, कैट, डॉग, विलेज, वेजिटेबल, कंट्री, ये सब क्या है? ये सारे कॉमन है. किसी भी एक ग्रुप को हम ये नाम दे दिए, जैसे कि कंट्री, तो कंट्री में तो बहुत सारे कंट्री आ गए, है ना. तो उसी तरह से बिजनेसमैन के अंदर बहुत सारे बिजनेसमैन आ गए, तो ये एक ग्रुप है. बिजनेसमैन का ये ग्रुप हो गया, ये कंट्री का एक ग्रुप हो गया. इसलिए इन सारे को कॉमन करके हम क्या करते हैं? कोई एक नाम दे देते हैं, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहेंगे. ओके, सो आफ्टर कॉमन नाउन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन प्रॉपर नाउन. सो व्हाट इज प्रॉपर नाउन? A proper noun is a special name given to a person, place, animal or thing. As for example, name of cities, name of countries, the personal names of people, names of days of week, names of months of a year, names of rivers, names of oceans and seas, names of special days and festivals, names of historical monuments. Okay, so let's start today's class. So the first one which I am going to teach you is collective noun. What it is? It is collective nouns. So what is the definition of collective nouns? When a noun stands for a collection or a group of persons, animals or things is called a collective noun. तो कलेक्टिव नाउन हम किसे कहते हैं? जब नाउन से हमें ये पता चलता है कि वो किसी ना किसी चीज़ का कलेक्शन है, जैसे कि वो किसी पर्सन का कलेक्शन हो सकता है, एनिमल का कलेक्शन हो सकता है, थिंग्स का कलेक्शन हो सकता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं. एज फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन इज आर्मी. सो आर्मी इज अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स. आर्मी क्या है? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स. तो ये भी किस चीज़ के ग्रुप को बता रहा है? सोल्जर के ग्रुप को बता रहा है. तो ये किस चीज़ का कलेक्शन हो गया? सोल्जर्स का कलेक्शन हो गया. इसीलिए ये क्या हो गया आपका? कलेक्टिव नाउन हो गया. नाउ द अनदर वन इज क्राउड and a group of people. Crowd is a group of people, so it is also a collective noun. Okay, now band is a group of musician. Gang is a group of thieves. Class is a group of students. Herd is a group of cattle. Fleet is a group of ships. Choir is a group of singers. Swarm is a group of bees. Jury is a group of judges. Crew is a group of sailors. Bouquet, a collection of flowers. So these are collective nouns. Okay, now let's see next one, which is abstract noun. So what is the definition of abstract noun? The nouns which tell us about a concept, state, feelings or a quality are called abstract noun. What is the definition? A nouns which tell us about a concept,
state, feelings or a quality are called abstract noun. वैसा नाउन जिससे हमें कॉन्सेप्ट के बारे में पता चले या किसी स्टेट के बारे में पता चले, फीलिंग्स के बारे में पता चले, क्वालिटी के बारे में पता चले, उसे ही हम क्या कहते हैं? abstract noun कहते हैं. Now let's see कि कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, क्वालिटी क्या हो सकता है, फीलिंग्स क्या हो सकता है. ओके, सो इन क्वालिटी गुडनेस, काइंडनेस, डार्कनेस, ब्राइटनेस, ऑनेस्टी, ये सारी क्या है? ये क्वालिटी है. ठीक है. नाउ एक्शन. इन एक्शन लाफ्टर, जजमेंट, थेफ्ट, हैट्रेड, क्राई, ये सब क्या है? एक्शन है. ये किसी न किसी एक्शन को बता रहा है. आप हंस रहे हैं, रो रहे हैं, तो ये सब क्या है? ये आप कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं ना, एक्शन हो रहा है, तो ये सब क्या बता रहा है? किस चीज़ को बता रहा है? एक्शन को बता रहा है. नाउ द स्टेट. सो स्टेट. इन स्टेट चाइल्डहुड, यूथ, स्लेवरी, फ्रीडम, एडल्टहुड, ये सब क्या है? स्टेट को बता रहा है कि आप पहले किस अवस्था में थे, बच्चे थे, फिर कि यूथ हैं, कैसे हैं आपको कौन सा स्टेट पसंद है, फ्रीडम रहना पसंद है. ठीक है. तो ये सब क्या बता रहा है? एक स्टेट को बता रहा है. तो ये सब के सब क्या हो गए? आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए. ओके, नाउ लेट्स सी मोर एग्जांपल ऑफ अब्स्ट्रैक्ट नाउन. सो द अनदर वन इज नेम्स ऑफ आर्ट एंड साइंस आर अब्स्ट्रैक्ट नाउन. किसी भी आर्ट्स या साइंस के नेम को हम क्या कहेंगे? वो सब आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है. एज फॉर एग्जांपल ग्रामर, लिटरेचर, म्यूज़िक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब क्या हो गए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके साइंस हो गए. ग्रामर, लिटरेचर, म्यूज़िक, ये सब क्या हो गया? आपका ये आर्ट हो गया. सो दीज आर ऑल्सो अब्स्ट्रैक्ट नाउन. नाउ अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म. अब हम देखते हैं कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैसे बनता है. सो द फर्स्ट वन इज़ फ्रॉम एडजेक्टिव सच एज. तो कैसे बनता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन? एडजेक्टिव से हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं. ठीक है. तो काइंडनेस फ्रॉम काइंड. काइंड क्या है? आपका एडजेक्टिव है, और तो काइंड से क्या बन गया? काइंडनेस बन गया. तो काइंडनेस आपका क्या हो गया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया. उसी तरह से ऑनेस्ट से बन गया आपका ऑनेस्टी. तो ऑनेस्टी आपका क्या हो गया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया. तो इस तरह से हम एडजेक्टिव से अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं. नाउ फ्रॉम वर्ब सच एज. अब हम देखेंगे कि वर्ब से कैसे बनाते हैं. सो फर्स्ट वन इज ओबे. ओबे इज वर्ब एंड फ्रॉम ओबे ओबीडियंस. तो ओबे से क्या बन गया? ओबीडियंस बन गया. सो ओबीडियंस इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन. नाउ ग्रो. ग्रो इज वर्ब. सो फ्रॉम ग्रो growth is there. So growth is abstract noun. What is growth? Growth is abstract noun and grow is verb. Now the third one. The third one is from common nouns such as. अब किसी से बनाएंगे? कॉमन नाउन से कैसे बनता है? तो चाइल्ड क्या हो गया? कॉमन हो गया. तो तो चाइल्ड से क्या बन गया? ये चाइल्ड से चाइल्डहुड बन गया. तो चाइल्डहुड क्या हो गया आपका? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया. नाउ स्लेव. स्लेव से क्या बन गया? स्लेवरी. सो स्लेवरी इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड स्लेव इज कॉमन नाउन. ओके, नाउ लेट्स सी मोर एग्जांपल्स. Abstract nouns are usually uncountable but some are countable and have plural forms. तो क्या कह रहा है कि abstract noun जो है जनरली अनकाउंटेबल होता है, यानी कि जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं. लेकिन कुछ ऐसे भी abstract noun है जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं और उनके प्लूरल फॉर्म भी होते हैं. सो एज फॉर एग्जाम्पल फीलिंग. सो फीलिंग इज abstract noun and the plural of feeling is feelings. Thought, the plural of thought is thoughts. Lie, the plural of lie is lies. Idea, the plural of idea is ideas. Truth, plural of truth is truth. So फीलिंग, थॉट, लाई, आइडिया, ट्रूथ, ये सब क्या है? ये सब आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है. और ये कैसा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है? तो ये काउंटेबल अब्स्ट्रैक्ट नाउन है. कुछ ही ऐसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जो कि काउंटेबल होते हैं. ओके, सो नेक्स्ट वन इज मटेरियल नाउन. व्हाट इज द नेक्स्ट वन? The next one is material noun. So the definition of material noun is a material noun is the name of substance from which objects are formed. Again I am repeating, a material noun is the name of the substance from which objects are formed. तो material noun हम किसे कहते हैं? material noun जो है वो किसी न किसी
सब्सटेंस का नाम होता है और उस सब्सटेंस से हम कुछ ना कुछ बना सकते हैं। तो वैसे ही सब्सटेंस के नेम को हम मटेरियल नाउन कहेंगे जिनसे हम कुछ ना कुछ बना सकते हैं, यानी कि उस सब्सटेंस का यूज़ करके बहुत कुछ बन सकता है। सो एज फॉर एग्जाम्पल, ब्रास इज़ एन alloy ऑफ कॉपर एंड जिंक. So brass is material, copper is material, zinc is material. Okay, so these are material noun. Now second one is coal is the cheapest fossil fuel. So coal is substance, so coal is material noun. Now the third one is women are fond of diamond jewelry. Diamond jewelry. So diamond is substance here, so it is material noun. Now the fourth one is utensils are made of stainless steel. So steel is substance here, so it is material noun. Now the last one is gold is a precious metal. Gold is a precious metal, so gold is substance, so it is material noun. तो यहाँ पे जितने भी सब्सटेंस हुए हैं, ठीक है, ब्रास, कॉपर, जिंक, कोल, डायमंड, स्टील, गोल्ड, इनसे कुछ ना कुछ बनता है। जैसे कि गोल्ड से ज्वेलरी बनता है ना। स्टील से यूटेंसिल्स, जो भी किचन के सामान हम लोग यूज़ करते हैं वो किसी से बनते हैं, स्टील से बनते हैं। डायमंड से क्या बनता है, ज्वेलरी बनता है ना। और कोल से हम क्या, कोल को हम लोग एज अ फॉसिल फ्यूल यानी जलाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। उसी तरह ब्रास, कॉपर, जिंक, इन सब से भी बर्तन बनते हैं और भी बहुत कुछ बनता है। सो ये सब ऐसे सब्सटेंस है जिनसे हम कुछ ना कुछ बनाते हैं, इसलिए क्या है, आपके मटेरियल नाउन्स हैं। ओके, सो इन द above sentences the words copper, zinc, brass, coal, diamond, steel and gold are the names of materials from which different objects are made or prepared. तो क्या कह रहा है कि जो भी यहाँ पे ऊपर एग्जाम्पल्स में नेम है, जैसे कि कॉपर हो गया, जिंक, ब्रास, कोल, डायमंड, स्टील, गोल्ड, ये सब क्या है, ये सब मटेरियल है और ये इन मटेरियल का यूज़ करके हम बहुत सारी चीज़ बनाते हैं। सो these are material nouns. Okay, so your explanation of this chapter is completed. Now we will see first question based on this chapter. So the question is, identify the nouns in the following sentences and write whether they are common, proper, collective, abstract or material noun. Put them in the columns given below. अब क्या कह रहा है कि यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसमें आपको फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से जो हैं इसमें नाउन है और वो नाउन जो है वो कौन से नाउन है, कि कॉमन नाउन है, आपके कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कौन से नाउन है वो आपको उसे आइडेंटिफाई करना है। और इसके बाद एक कॉलम दिया गया है, उस कॉलम में आपको कॉमन नाउन का अलग कॉलम है, प्रॉपर का, कलेक्टिव का, अब्स्ट्रैक्ट का, मटेरियल का अलग अलग कॉलम है। उसमें आपको फिर इससे फाइंड आउट करके उसमें फील करना है। ओके, सो इन नेक्स्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर आई विल एक्सप्लेन इट. ओके, I will tell you which one is common, proper, collective, abstract and material, and where you have to write. So now your homework. So your homework is you have to read this chapter and remember the definition of all kinds of noun. What is your homework? You have to read this chapter and remember kinds of nouns. Okay, got it everyone?